A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So, class, today we will start our new chapter of your book, Political Theory, which is your second book. Okay, so in last chapter we have discussed about the introduction of political theory, why it is important to study political theory, and what type of values political theories have and idols, and what type of values it inculcates in us to become a better human being. Okay, so one idol, this one, and you can say most important idol, freedom. We will talk about freedom in this chapter. Okay, so like if you look at these pictures, this is the picture of Nelson Mandela, which you have obviously you heard about him in your earlier classes. And this is the picture of Aung San Suu Kyi. Okay, she is the Nobel Peace Prize winner of awardee of 1991, and she is from Malaysia. Okay, and Nelson Mandela, as you all know, he was the first president of South Africa, and he struggled a lot for the freedom of South Africa. Okay, so we will talk about these heroes later on this chapter. So basically, as you all know, human history provide us so many examples of people and communities which have been dominated, enslaved, or exploited by more powerful groups. And India is one of the examples. We know our ancestors or heroes struggled a lot for the freedom of our country. They had been dominated, they had been enslaved, they had been exploited, like in many ways, by the Britishers, right? So many countries, so many communities, so many people uh, were there which have been dominated, discriminated, enslaved, or exploited in so many ways by the powerful groups of our community. Okay, but it also provides us with inspiring examples of heroic struggles against such domination. We know our country, in our country we have we have so many heroes who struggled a lot for the independence of our country. Okay, if I named them, there are so many countless countless people, countless individuals were there who struggled a lot, and who is known as the heroic symbol against this domination. And if I name some famous personalities, these they are like Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, and you can say Subhash Chandra Bose. So many heroes were there. Okay, national heroes uh, were there who fought for the independence of our country, and they faced a lot of domination even in our community also, not by the Britishers only. In our community also, if you take the example of Dr. Bhimrao Ambedkar, he also uh, uh, discriminated, और किस वजह से discriminate हुए थे? Because of his caste he discriminated. ठीक है, तो बहुत से he fought for the equality. ठीक है, he fought for the freedom, कि he has the freedom to get education. Scheduled caste has the freedom to get the opportunities to get education, get water from the same tank, or they may visit the bathing ghats, etc., etc., right? So what is this freedom for which people have been willing to sacrifice and die? Okay, so many people, they sacrifice their life. Okay, they sacrifice their life, they died just because for this freedom. And वो तो मर रहे हैं, और उनको तो just because of their country's independence, for their country's people,
they sacrifice their everything. They sacrifice their personal likings, they sacrifice their life, they died, etc. ठीक है? And why? In its essence, just underline the statement. If you guys have your book with you, please purchase your books as soon as possible. If you guys have your book with you, okay, please underline the statement. The struggle for freedom represents the desire of people to be in control of their own lives and destinies, and to have the opportunity to express themselves freely through their choices and activities. Not just individuals, but societies also value their independence and wish to protect their culture and future. So, what is this freedom? Freedom is the struggle for freedom. It represents the desire, our our likings. ठीक है? हमारी जो इच्छाएं हैं, लोगों की जो इच्छाएं हैं कि हम अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करें, ठीक है? हम अपनी डेस्टिनी को अपने हाथ में रखें, कोई और हमारी लाइफ को चूज ना करे, व्हाट यू आर सपोज टू डू, व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू, ठीक है? एंड व्हाट प्रोफेशन यू हैव टू प्रोफेस, एक्सेट्रा, ठीक है? हमारे पास हमारी खुद की लाइफ का कंट्रोल हो, हम अपनी डेस्टिनी हम खुद लिखें, एंड टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, वी हैव दैट, लाइक हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जिससे कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, हम अपनी चॉइसेस को बता पाए, हम अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज को करें. This is the struggle for freedom, and it is not just only for the individuals, but it is for the societies. Societies also like value their independence and wish to protect their culture and future. ठीक है? अब इंडिया है तो इंडिया में इंडिविजुअल्स ने अपने लिए, ओनली इंडिविजुअल्स जो थे, उन्होंने अपने लिए फ्रीडम थोड़ी ना ली थी. They got independence for their whole community. ठीक है? We wanted to protect our culture, we wanted to protect our future generation. तो वो अगर independence नहीं होगी, for example, you all like maybe we all are here Hindus, like जितने भी हम क्लास में हैं हम हिंदूज हैं. For example, अगर और भी कोई है, I don't have idea about you guys, ठीक है? मे बी कुछ लोग जैन होंगे, कुछ लोग पंजाबी होंगे, ठीक है? या हो सकता है राजपूत होंगे, ठीक है? कोई भी कास्ट हो सकती है, कहीं मतलब कोई भी रिलीजन से आप बिलोंग कर सकते हो. तो वी ऑल्सो वांटेड कि हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखें, हम अपने फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है? उसके लिए वी परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑल्सो. ओके, सो दिस इज द फ्रीडम फॉर स्ट्रगल, टू डिजायर desire to be in control of our own lives. अगर simple word में पूछे what is struggle for freedom, it means desire of people to be in control of their own lives and destinies. This is known as like freedom, struggle for freedom. So as you all know, the diverse interests and ambitions of people, any form of social living requires some rules and regulations. And as India तो सबसे अच्छा example है, हमें तो हमारे तो रग रग में बसा हुआ है कि यस डाइवर्सिटी तो होगी. लाइक हम एक छोटे से अगर हॉल में भी चले जाएं, ठीक है? आप अपने स्कूल के क्लासरूम की बात कर लो, क्लासरूम में भी चले जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितनी डाइवर्सिटी है. और obviously as a unique creatures, we all are unique creatures, and as a unique creatures we all are like very different, very diverse from each other. But उसे छोड़ दीजिए, आप अपनी पर्सनालिटी को छोड़ दीजिए. अगर आप सोसाइटी सोशल वैल्यूज लाइक रिलीजन के अकॉर्डिंग देखो, आप कास्ट के अकॉर्डिंग देखो, आप जेंडर के अकॉर्डिंग देखो, फिर भी हम कितने डाइवर्स हैं, और हमारे क्लास में हमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज मिल जाएगी. सो इफ यू वांट टू लिव टुगेदर, ठीक है? और ऐसे सोशल लिविंग के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे होने चाहिए, ठीक है? समटाइम्स हमें वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत बुरे भी लगते हैं, बट these rules may require some constraints to be imposed on the freedom of individuals. ऐसा नहीं है you have the freedom तो आप किसी को कुछ भी बोलोगे,
ठीक है, यू यूज यू आर अब्यूजिंग ईच अदर, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल आपका मन किया, यू लाइक यू आर you can say you are like you become violent, ठीक है। इवन आप कंट्री के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो, नो, यू हैव नॉट अलाउड टू डू ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें वो फ्रीडम नहीं है, ठीक है। तो फ्रीडम्स, इंडिविजुअल्स की फ्रीडम में कोई ना कोई कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। कोई ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, इम्पोज की भी होनी चाहिए। And it is recognized that such constraints may also free us from insecurity and provide us with the conditions in which we can develop ourselves. और ये जो हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो हम पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, वही हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कोई किसी का भी आके मर्डर करके जा रहा है, तो यू फील सेफ फॉर योरसेल्फ, या अपनी कम्युनिटी के लिए सेफ समझोगे कि हम सेफ हैं, या कोई भी आपको अब्यूज कर रहा है, यू फील लाइक डिग्निफाइड, डू यू फील डिग्निफाइड और डू यू फील प्रोटेक्टेड? नो. So some constraint is also like some constraints are also necessary from insecurity, like it protect us from the insecurity and provide us with the condition in which we develop ourselves. जैसे ऐसी conditions को develop करता है जिसमें, या फिर ऐसी conditions को provide करवाता है जिससे कि हम अपने आप को develop कर सकें. So in political theory, much of the discussions regarding freedom has therefore focused on trying to involve principles by which we can distinguish between social necessary constraints and other restrictions. Now question arises कि कौन से constraints होने चाहिए, क्या restrictions होने चाहिए, क्या restrictions नहीं होने चाहिए, कितने level तक हमें freedom मिलनी चाहिए, ठीक है, और इस चीज को society में कितने freedom की requirement है, क्या क्या कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए, इसके बारे में हम क्या करेंगे, हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे दोनों में अंतर, लाइक पॉलिटिकल इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी यही एक्सप्लेन करता है, जो फिलोसफर्स थे, जो थिंकर्स थे, जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने इसी बारे में डिस्कस किया है, एंड दे ट्राई टू गिव द बेस्ट distinction between these required constraints and restrictions we want, or we all are supposed to have in our community. Okay, so there has also been debate about possible limitations on freedom which may result from social and economic structures of a society. So after reading this chapter, we will able to understand what we all are able to understand. We all are able to understand the importance of freedom for individuals and societies. We all are like free, ठीक है, we live in a free country, we live in a democratic country. तो मे बी आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं पता, आपके पास जो फ्रीडम है आपको उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, ठीक है। मे बी अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं, पहले लाइक गर्ल्स को लाइक families don't allow girls to go to the school or get their education, ठीक है। तो और आज के टाइम पे ऐसी हो सकता है आपके मदर हो, आपकी ग्रैंड मदर हो, जिन्होंने ये सारी चीजें फेस की है, या आपके लाइक ग्रैंडफादर हो जो लाइक जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था उससे पहले से वो वहां पे वो थे, और उन्होंने वो चीजें फेस की है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था तो हम कैसे थे। तो दे उनको इम्पोर्टेंस जो है ज्यादा पता है फ्रीडम की, ठीक है। उनसे अगर कोई है ऐसा, ठीक है, आसपास में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट्स हैं, होता है बहुत सारे लोगों के भी होंगे, तो वो आपको बताएंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, क्या लाइक उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था, और वो जितना वैल्यू करते हैं ना, मे बी हम उतनी वैल्यू नहीं करते हैं। या ऐसे लोग जिन्होंने फेस किया है रियलिटी में व्हाट इज स्ट्रगल, ठीक है, व्हाट इज स्ट्रगल फॉर हैविंग फ्रीडम फॉर एनीथिंग,
एक छोटा सा एग्जांपल दिया गर्ल्स का लेके, ठीक है। आज के टाइम पे भी कहीं ना कहीं रूरल में, मोस्टली रूरल एरियाज में देखने को मिलता है, गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू गो टू द स्कूल, ठीक है। अब तो रेयरली मिलता है, बट अगर आप जिसे अलाउ किया गया है, जिसने बहुत स्ट्रगल करके जिसने पढ़ाई की है, या वो कहीं पढ़ने गई है अपनी फैमिली से स्ट्रगल करके या फिर अपने कम्युनिटी से स्ट्रगल करके, तो आस्क हर कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट फ्रीडम। So after studying this freedom, we will able to understand the importance of freedom for individuals, for societies. We can also explain the difference between negative and positive dimensions of freedom. Yes, there are negative dimensions of freedom also. So we will able to understand exactly what are dimensions or positive dimensions of freedom, and we will also able to know about the harm principle. We will talk about it later on, what is this harm principle and everything. Okay, so today we will start with this our first topic of your chapter, that is the idol of freedom. Okay, what is the idol of freedom, or what do you mean by the idol of freedom? So before before some of the questions like which we have read in the introductory part of our chapter, before answering those questions, we will talk about Nelson Mandela and Aung San Suu Kyi. Okay, so you all know about the autobiography of Nelson Mandela. ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आपने, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. So this is the autobiography of one of the greatest person of the 20th century, that is Nelson Mandela. And the title of his autobiography is Long Walk to Freedom. So basically what Nelson Mandela का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है. अपैरेथीड सिस्टम के अगेंस्ट में इन्होंने क्या है बोला था. अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में इन्होंने और इनके अलग इनके जो मेंबर्स थे, ठीक है, इनके जो फ्रेंड्स आप बोल सकते हो उन्होंने, और वो अप्रोक्सीमेटली 28 इयर्स तक जेल में रहे थे. उनको बहुत ही लाइक रॉबिन्सन, आई थिंक रॉबिन्सन ही है, रॉबिन्सन जेल में उनको रखा गया था, ठीक है. एंड इस जेल में ही शायद इन्होंने ये जो है बुक भी लिखी थी, और उन्होंने सारी चीजें लिखी थी, स्टार्ट कर दी थी उन्होंने लिखना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. सो फाइनली 1994 में क्या है, इनको फर्स्ट प्रेसिडेंट, जब साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुआ तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने वहां, Nelson Mandela. So, in this book of his, he talks about his personal struggle against the apartheid regime in South Africa, about the resistance of his people to the segregationist policies of the white regime, about the humiliations, hardships, and the police brutalities suffered by the black people of South Africa. So, first of all, what is this apartheid regime? Anybody wants to tell me the meaning of apartheid regime? What is the meaning of apartheid? Yes, Lakshya, please unmute your device. मैंने कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था. Yeah, discrimination on the basis of race. ठीक है, skin color or physical structure is known as apartheid. Government regime is government. Very good, Lakshya. So apartheid regime in South Africa. South Africa में 1940s के बाद में, पता है 1950s के टाइम पे के व्हाइट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, apartheid सिस्टम चला दिया था, ठीक है. apartheid regime, ये जो apartheid गवर्नमेंट थी, they discriminated people on the basis of their color, skin color, physical structure, ठीक है. Other than whites, they mentioned everyone as like blacks or colored, ठीक है. blacks और colored के नेम से वो क्या करते थे, उनको
बोला करते थे, तो वो बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन था। दे आर नॉट अलाउड टू गो टू द सेम चर्च, स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस में अलाउ अलाउ नहीं होता था। इवन बैनर्स लगे हुए होते थे, कलर्ड एंड डॉग्स नॉट अलाउड। तो समझ लीजिए कितना डोमिनेशन और कितना ह्यूमिलिएशन उन्होंने फेस किया है। सो अबाउट द रेसिस्टेंस ऑफ हिज पीपल टू द सेग्रीगेशनिस्ट पॉलिसी। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? मतलब अलग कर देना। हम बोलते हैं ना सेग्रीगेट हो जाइए, अलग हो जाइए। तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट। ठीक है, तो ये जो सेपरेशन पॉलिसीज थी, अपेरेथीड पॉलिसीज ही बोलोगे जिससे, ये अपेरेथीड पॉलिसीज जो थी वाइट रिजाइम की, तो उसके अगेंस्ट में ये स्ट्रगल रहा है। नेल्सन मंडेला ने अपनी बुक में लिखा है कि कैसे पर्सनली मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है अपेरेथीड रिजाइम के अगेंस्ट में। अबाउट द क्या क्या हमारे लोगों ने ह्यूमिलिएशंस फेस की है, हार्डशिप्स फेस किए। इवन पुलिस भी जो है बहुत ब्रूटल होती थी हमारे साथ। तो जो भी ब्लैक पीपल थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने जो भी डिस्क्रिमिनेशन, डोमिनेशन, ह्यूमिलिएशन, हार्डशिप्स देखी है, उसके बारे में ही डिस्क्राइब इसको इन हिज ऑटोबायोग्राफी। व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी? बुक विच इज रिटन बाय लाइक आपकी लाइफ के बारे में अगर आप खुद कोई बुक लिखते हो, दैट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। ओके, सो sorry, these range from being bundled into townships and being denied easy movement about the country to being denied a free choice of whom to marry. अब देखिए ये जो ह्यूमिलिएशन थी कहाँ से, मतलब कि आप कौन से टाउन में रह सकते हो, किस प्लेस में रह सकते हो, कहाँ जा सकते हो, टू आप कौन सी कंट्री में विजिट कर सकते हो, कौन सी कंट्री में विजिट नहीं कर सकते हो। इवन जो चॉइस ऑफ मैरिज थी, ठीक है, वो भी नहीं था आपके पास। ठीक है, कि आप कैसे, मतलब साउथ अफ्रीका के पास चॉइस ऑफ मैरिज भी नहीं थी कि किसके साथ आप शादी कर सकते हो। तो पर्सनल जो लोगों की स्ट्रगल थी फ्रीडम को लेके, ठीक है, स्पेशली अपेरेथीड रिजाइम को लेके थी ये। Collectively, such measures constituted a body of constraints imposed by the apartheid regime that discriminated between citizens based on their race. Now, I told you कि like freedom है तो कुछ constraints होने जरूरी है, rules and regulations होने जरूरी है। But South Africa में ये जो constraints थे, क्या constraints थे कि apartheid government ने, जो white government, apartheid government मतलब white government ने क्या किया था, सिटीजन्स को वो डिस्क्रिमिनेट कर रही थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस। दिस इज नॉट द राइट कॉन्स्टेंट ना, कि आप उसके उनके स्किन कलर को देख के आप उनसे क्या कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ये ये कोई तरीका नहीं होता कि आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग मतलब ये कॉन्स्टेंट लगाओ कि यू आर नॉट फ्री, you are black, you are not supposed to go there, you are not supposed to eat this, you are not supposed to marry to this person, etc etc। like ये कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है, अब ये कॉन्स्टेंट सही नहीं है। क्या कॉन्स्टेंट होना चाहिए ये भी डिपेंड करता है ना, कि सही तो होना चाहिए। सो फॉर मंडेला एंड हिज कलीग्स, कलीग्स मतलब फ्रेंड्स बोल दीजिए या साथ में काम करने वाले बोल दीजिए, co-workers बोल दीजिए। So for Mandela, Nelson Mandela and his colleagues, it was the struggle against such unjust constraints. These are like unjust constraints, obviously. Struggle to remove the obstacles to the freedom of all the people of South Africa. And now, इनका जो ये स्ट्रगल था खाली ब्लैक्स के लिए नहीं था, कि कलर्ड पीपल, ठीक है, जितने भी इंडियंस या कलर्ड पीपल्स भी थे, या एंड ऑल्सो सम वाइट पीपल्स आर ऑल्सो देयर, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी था। सो दैट वाज द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कि क्या स्ट्रगल रहा है, क्या ह्यूमिलिएशंस उन्होंने फेस की है, क्या क्या उन्होंने स्टेप्स उठाए थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, so for this freedom, Mandela spent 28 years of his life in jail, often in solitary confinement. Solitary confinement मतलब कि एक अकेले अकेले उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था, ठीक है। So imagine what it meant to give up one's youth for an idol, to voluntarily give up the pleasure of talking with one's friend, of playing one's favorite game. Nelson Mandela's
favorite game was boxing, of wearing one's favorite clothes, of listening to one's favorite music, of enjoying the many festivals that are part of one's life. Imagine giving up all these and choosing instead to be locked up alone in a room, not knowing when one would be released, only because one campaigned for the freedom of one's people. For freedom, Mandela paid a very high personal price. Okay, so now imagine uh, this hero, Nelson Mandela, give up everything. He voluntarily, मतलब अपने मन से उसने सब कुछ त्याग दिया. He gave up everything, every pleasure, every likings of him, and he came, and just for the freedom of one's people. किस लिए? बस अपने लोगों को आजादी मिल सके, उनके लोगों को, ठीक है, उनकी जो सोसाइटी है उन्हें आजादी मिल सके. उसके लिए उन्होंने अपने पर्सनल जो है, पर्सनल प्लेजर्स को, पर्सनल लाइकिंग्स को ही गिव अप. ओके, एंड फॉर मंडेला, फॉर फ्रीडम मंडेला पेड अ वेरी हाई पर्सनल प्राइस. ठीक है, बहुत बड़ा हीरोइक सिंबल माना जाता है वर्ल्ड में नेल्सन मंडेला को. Okay, and now our another example is of like Gandhi ji's, you can say, इन्हें जो ओंग सैन सू की है, इन्हें गांधी जी का मतलब बोल सकते हो कि एक जो गांधी जी के राहों में चल, मतलब पैरों में चलने वाली, या जो भी उन्होंने गांधी जी के थॉट थे नॉन वायलेंस के. तो ओंग सैन सू की के भी जो थॉट्स थे वो क्या थे? नॉन वायलेंस के थे. और वो गांधी जी के जितने भी वैल्यूज दी गई थी उन पे उन उस बात पे वो चल रही थी. शी टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर. सो ओंग सेन सू की कौन थे पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ओंग सेन सू की थी, ओंग सेन जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगल रहे हैं. ओंग सेन उनकी बेटी रही है, ओंग सेन सू की, एंड उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया था. ठीक है, थोड़ा सा इनके लाइफ के बारे में बता देती हूँ कि इनके फादर की डेथ हो गई थी फ्रीडम, जब भी म्यांमार में जब फ्रीडम मिली उन्हें. ठीक है, तो उसके बाद लाइक 1947-48 के अराउंड जो है उनके फादर की डेथ हो गई थी, एंड शी वाज जस्ट 2 years ओल्ड. 1945 का इनका बर्थ है. और इसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से लाइक उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की. फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन ली, और भी उन्होंने बहुत सारी चीजें की. इवन 2-3 years तक इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में वर्क किया. फिर एक ब्रिटिशर से इन्होंने शादी कर ली और वहीं पर रहने लग गई थी. ठीक है, फिर 1980s में, ठीक है, 1989 के 89 के अराउंड वो बर्मा आई, म्यांमार आई. उस टाइम पे बर्मा बोला जाता था म्यांमार को. उनकी मदर की तबीयत लाइक हर मदर वाज नॉट वेल, तो उन्हें देखने के लिए आई. एंड उन्होंने देखा कि लाइक यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लाइक मिलिटेंट्स का बहुत ज्यादा ऑपोजिशन है. ठीक है, लोगों को लाइक फ्रीडम काइंड ऑफ फियर है एक. ठीक है, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने बोलना स्टार्ट किया और एक पार्टी ज्वाइन कर ली थी, और उस पार्टी में वो जीत भी गई थी. बट फिर भी मतलब लाइक 80% जो सीट्स है वो उनको ही मिलती. बट फिर भी जो आप बोल सकते हो जो मिलिट्री थी, उन्होंने क्या कर लिया था, फिर से कैप्चर कर लिया था. और जो ओंग सान सू की है, उन्हें क्या है, हाउस अरेस्ट में रख लिया था. Separated from her children, unable to visit her husband when he was dying of cancer, because she feared that if she left Myanmar to visit him in England, she would not be able to return. ठीक है, अब देखिए उनके जो हस्बैंड थे ऑब्वियसली ब्रिटिशर था. ठीक है, फॉरेनर था, तो इसलिए जब उसके हस्बैंड की डेथ हो, लाइक सॉरी नॉट डेथ, उनको कैंसर हो गया था. ठीक है, तो उन्हें वो विजिट करने भी नहीं जा सकी थी. बस यही डर था कि अगर वो चले गए तो वो वापस से नहीं आ पाएगी, म्यांमार में वापस नहीं आ पाएगी. और ओंग सैन सू की सॉ हर फ्रीडम एज कनेक्टेड टू द फ्रीडम ऑफ हर पीपल. उन्हें लगा कि ये जो फ्रीडम है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ फियर है, फ्रीडम ऑफ हर पीपल, लाइक फ्रीडम ऑफ हर पियर की जो गवर्नमेंट है, जो मिलिट्री है, जो पुलिस है,
वो क्या है, हमें रूल ना कर सके, ठीक है, हाँ, हमारे अगेंस्ट कुछ बोल ना सके, ठीक है, हम उनसे डर डर के जी रहे हैं कि हमने अगर ये स्टेप ले लिया तो गवर्नमेंट ऐसा कर देगी या फिर हमारे नेबर्स ऐसा कर लेंगे, तो फ्रीडम फ्रॉम फियर यही है। सो शी रोट सो मेनी एसेज, इवन बुक भी है, इवन फ्रीडम फ्रॉम फियर से एक मूवी भी बन गई थी, एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, ठीक है, 2008 के अराउंड, आप यूट्यूब में देखेंगे आपको मिल जाएगी। Her book of essays bears the title Freedom from Fear. She says, for me, real freedom is, please underline this statement, for me, real freedom is freedom from fear. And unless you can live free from fear, you cannot live a dignified human life. अगर आप डर डर के जिएंगे, ठीक है, आप हर एक स्टेप में, आप अपने नेबर से भी डर रहे हैं, आप अपने पुलिस से भी डर रहे हैं, आप अपने गवर्नमेंट से भी डर रहे हैं, तो आप एक ऐसी लाइफ नहीं जी सकते, एक डिग्निफाइड रिस्पेक्टेड लाइफ नहीं जी सकते। तो मेरे लिए फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम फियर, बिना डरे जीना ही क्या है, रियल फ्रीडम है। सो दीज आर द डीप थॉट्स दैट lead us to pause and consider their implications. We must not, her word suggests, be afraid of the opinions of other people or of the attitude of authority or of the reactions of the members of our community to the things we want to do, of the ridicule of our fears, or of speaking our mind. Yet we find that we often exhibit such fear. For Aung San Suu Kyi, living a dignified human life requires us to be able to overcome such fear. So basically, Aung San Suu Kyi सी के लिए क्या था फ्रीडम, लिविंग a dignified human life, and which means freedom from fear. Okay, for her फ्रीडम का मतलब यही था, फ्रीडम फ्रॉम फियर। आपको किसी से, आप अपने ओपिनियंस रख सकते हो, आप अपनी चॉइसेस रख सकते हो, चाहे आपके पीयर्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे नेबर्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, मिलिट्री हो, ठीक है, इन सबके अगेंस्ट में, ठीक है, ये क्या है, इन्होंने बोला कि अगर डर के जी रहे हैं तो हम एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी रहे। और 1991 में इनको ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के लिए जो इन्होंने फाइट की थी नॉन वायलेंटली, इसलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1991 में। और वो हाउस अरेस्ट में रही थी टिल 2010 तक। हाउस अरेस्ट का मतलब अपने ही घर में वो बंद रही थी, उनको अलाउड नहीं था कि वो कहीं पे भी जा सके। इवन उनको 2010 के बाद जो है एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर बनाया गया, प्रेसिडेंट नहीं बन सकी बिकॉज वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीजें मेंशन है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि हर हस्बैंड वाज ब्रिटिशर, फॉरेनर था, उनके बच्चे फॉरेनर थे, तो इसलिए इन्हें वहां का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया। So from these two books of Nelson Mandela and Aung San Suu Kyi, we can see the power of the idol of freedom. क्या idol है, क्या value है? An idol that was center of our national struggle and the struggles of the people of Asia and Africa against British, French and Portuguese colonialism. Okay, so लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनके रेस के अगेंस्ट, उनकी रेस के अगेंस्ट फाइट थी, और फ्रीडम फ्रॉम फियर की लाइक डर के नहीं जीना है। ह्यूमन राइट्स के लिए क्या थी, ह्यूमन राइट्स के लिए ये एक स्ट्रगल था। ओके, so class, this is all about today. Thank you so much for joining the class, and now you like please go through the topic and read the topic, and if you face any problem you may ask me. Thank you so much for joining the class.